We are preparing for higher education under scheme Prerna scheme for preparing higher education such as like GATE examination. So the topic of this today's topic of discussion is problems on train. Yeah. So problems on train, we have some basic formulas regarding the problems on train. We will go through that formulas very shortly. हमने पढ़ चुके हैं हम ये सब चीजें जो है, we have gone through in our school times. So the very first formula is speed. How can we calculate the speed? Speed can be calculated. Speed is equal to distance upon time. So if you want to find out the speed of anything, the basic formula for speed is distance upon time. And if the value is given in kilometer per hour, and if you want to convert it into meter per second, uh, many of times what happens in the question, they are given time in meter per second. So it is important to convert that speed that is in the kilometer per hour to meter per second. To convert that speed from kilometer per hour to meter per second is like you have to multiply by 5 by 10 to what? That value which is given in the form of kilometer per hour is multiplied by 5 by 18. So you will get answer in meter per second with that particular value. And if you have to convert this meter per second into kilometer per hour, for that what you have to do is you have to multiply 18 by 5 to meter per second value that is already given in the question. So please go through this slide for a second for this basic three important formulas, and then we will study more. Just have a look for a minute. Okay. So the next formula is your relative speed. Now, in case of relative speed, we are talking about the trains in which they are moving in the same direction, and as well they are moving in the opposite directions. So when the trains are moving in the same direction, that speed is calculated as a relative speed, and that speed is the subtraction of both the speed of the trains, that is v1 minus v2, or you can write as a speed that is s1 minus s2. And when the objects are moving in the opposite direction, then the speed will get added, right? So this is called as the relative speed of the train. So this is the third and the important formula to calculate the speed, that is the relative speed regarding the trains. So we have gone through basic three concepts. The very first is your speed, that is a formula for speed, which is nothing but distance upon time. Second is we have gone through conversions, that is your kilometer per hour to meter per second and meter per second to kilometer per hour. And the third one is your relative speed, in which we are talking about two trains. हम दो trains की बात कर रहे हैं जिसमें क्या हो रहा है, this two trains are moving in the same direction. अगर दोनों trains अगर same direction में move हो रही है तो हम दोनों के speed को minus करेंगे, and if the trains are moving in the opposite direction, then we will add the speed of the respective trains. तो यहाँ पे जब ट्रेन जो है वो सेम डायरेक्शन में मूव करेंगी तो हम क्या करेंगे, दो स्पीड्स को माइनस करेंगे. जैसे मैंने यहाँ पे v1 माइनस v2 लिखा है, यू कैन ऑल्सो राइट s1 माइनस s2. और जब दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब एक ट्रेन जो है आपको दिख रहा है पिक्चर में, वी हैव कंसिडर्ड दिस एज अ टू ट्रेन, एक ब्लू कलर में दिख रही है, ऑरेंज कलर में दिख रही है, राइट. जब वो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है अलग अलग ट्रैक्स पे, तो आपके जो स्पीड रहेगी वो क्या रहेगी, दोनों का एडिशन रहेगी. क्लियर. अब हम लोग आगे बढ़ने से पहले थोड़ा कन्वर्जन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं. तो कन्वर्जन के बारे में जब हम लोग डिस्कस करेंगे
ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया, आई हैव टोल्ड यू दैट वी हैव टू कन्वर्ट द स्पीड फ्रॉम किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर आवर। तो जैसे मैंने बोला कि अ ट्रेन मूव्स विद द स्पीड ऑफ फॉर एग्जांपल 108 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट 108 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये 108 किलोमीटर पर आवर ये हमको स्पीड गिवन है, और इसको आपको क्या करना है, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। क्लियर? सो अब जब आप इसको बोलेंगे कि ये मेरा 10, मैंने बोला कि मेरा ये 108 क्या है, किलोमीटर पर आर है। ठीक है, किलोमीटर पर क्या है, आर है। और आपको क्या करना है, व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू यू हैव टू कन्वर्ट दी दिस किलोमीटर पर आर टू मीटर पर आर। क्लियर? सो दिस किलोमीटर पर आर ये जो रहेगा, दिस इज द वैल्यू। ठीक है, जो हमको किलोमीटर पर आवर गिवन में, और हमारा फॉर्मूला क्या बोलता है कि अगर हमको कोई भी वैल्यू को किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर मल्टीप्लाइंग बाय इट 5/18। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन ये बोलता है कि आपके पास में जो वैल्यू गिवन है वो गिवन है, अ ट्रेन मूव्स विद स्पीड ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर। मतलब अगर मुझे किलोमीटर पर आवर से कोई वैल्यू को मूव करना है, किलोमीटर पर आवर के वैल्यू से, ठीक है, तो मुझे उसको क्या मल्टीप्लाई करना पड़ता है, 5/18 से आई हैव टू मल्टीप्लाई टू गेट कन्वर्ट इनटू मीटर पर सेकेंड। क्लियर? तो अब मैं क्या करूंगी, किलोमीटर पर आर मुझे क्वेश्चन में कितना गिवन था, आई टोल्ड यू दैट इज 108। ये 108 इंटू 5/18 आई विल डू, एंड वी विल गेट अ वैल्यू। कितना हो जाएगा ये, इसको कैलकुलेट अगर हम लोग करते हैं, तो दिस विल बी योर, ये आप डिवाइड कर देंगे 18 से, तो ये हो जाएगा 65 इंटू 30 मीटर पर सेकेंड, ये आपका हो जाएगा। तो आपने अभी क्या किया, व्हाट यू हैव done is you have converted this kilometer per hour, right? The kilometer per hour into meter per second, into what, meter per second. So in such a way we will convert the basic values into kilometer per hour, from kilometer per hour to meter per second, or from meter per second to kilometer per hour. Next we can also take is, what we can do is we can also convert the meter per second value into kilometer per hour. ठीक है, तो मीटर पर सेकेंड इंटू किलोमीटर पर आवर करेंगे तो वो कैसे हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल आई एम सेइंग अ स्पीड ऑफ 40 मीटर्स पर सेकेंड इज सेम एज, मैंने क्या बोला, स्पीड ऑफ 40 मीटर्स पर सेकेंड। तो ये मेरा 40 मीटर्स पर सेकेंड हो गया, दिस इज माई 14 meters per second. It is equivalent to what? It is equivalent to what? So it is equivalent to what? It can be converted into kilometer per hour. So we can convert this value into kilometer per hour. So how we will convert this kilometer per hour? What is the formula for that? We have gone through. We have gone through this formulas. Clear? We have gone through this formulas, that is to convert from kilometer to hour, or ठीक है, or meter to kilometer hour. So we can gone through this formula. So we will multiply this 14 मीटर पर सेकेंड is equivalent to your kilometer per hour. तो हम लोग कैसे करेंगे इसको किलोमीटर पर आवर के लिए, now this is your meter, that is 14 into, अब क्या करना पड़ेगा, now we have to perform 18/5. So now this would be your 18/5. तो इसको कैलकुलेट अगर आप करते हैं तो इसका वैल्यू would be your 5 point something, 5.4. this will be your kilometer per hour. So it is equivalent, that is meter per second is equivalent to kilometer per hour. But for that we have to go through some basic calculations that we are doing. Clear? So this is all about the conversion. Okay, fine. तो ये हमारा conversion था from kilometer to hour, from kilometer to hour to meter per second, or from meter per second to kilometer per hour. Clear? So this is all about the conversion. Now we will move to questions directly. We will move to questions directly now. So the basic question is the first question. When a train crossing a man or a single signal post, okay? When a train crossing a man or a signal post. When we talk about the question,
For example, consider a question in which you have given a pole, a man or a tree or a single post. ठीक है, तो ये सब चीजें रहेंगी. तो when pole, man, tree is given in the question, then only length of the train can be calculated. Only what we can do, only we can calculate the length of the train. We have mentioned the time taken by the train of length L meters to pass a pole or a standing man or a signal post or any tree, right? Any pole, it may anything, is equal to the time taken by train to cover L meters. It means when you have to calculate the length of the train, it means what? It is the time taken by the train and speed of the train. You will get multiply and you will get the value of length of the train. Now the next, we will have numerical on this, right? So we will have our first numerical on the based on above problem formula, sorry. So problem number 1 is a train running at a speed of 60 kilometers per hour. हमारे पास में एक ट्रेन है जिसका स्पीड कितना गिवन है, 60 किलोमीटर पर आवर, क्रॉसेस अ पोल. नाउ प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट. यहाँ पे हमने बोला इट क्रॉसेस अ पोल. मैंने अभी आपको फॉर्मूले में बताया कि जब कभी हम लोग कोई पोल की बात करेंगे, व्हेन वी टॉक अबाउट पोल, मैन, ट्री, अ सिग्नल पोस्ट, व्हेन इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, देन ओनली लेंथ ऑफ ट्रेन कैन बी टेकन. तो हम क्या करेंगे, लेंथ ऑफ ट्रेन ही कंसिडर करेंगे, बाकी हमको कोई चीज कंसिडर करने की जरूरत नहीं है. सो अ ट्रेन रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेस अ पोल इन 9 सेकेंड्स. मतलब हमारे पास में ट्रेन का स्पीड इज गिवन एंड हमारे पास में उसका टाइम इज गिवन. सो व्हाट इज द लेंथ ऑफ ट्रेन? तो लेंथ ऑफ ट्रेन हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ लेंथ ऑफ ट्रेन? लेंथ ऑफ ट्रेन इज नथिंग बट योर डिस्टेंस. मींस वी विल हैव फॉर्मूला. लेट्स सी. Speed is equal to distance upon time. Clear? So speed is equal to distance upon time. ये क्या है? ये हमारा speed is equal to distance upon time का फॉर्मूला है. तो अब हमको क्वेश्चन में what is given in the question? In the question they are given with speed. तो speed का वैल्यू कितना हो गया? अब वो क्या बोल रहे हैं कि स्पीड का जो वैल्यू है, ठीक है, जो स्पीड का वैल्यू है दैट इज गिवन is equal to 60 किलोमीटर पर आवर, राइट, इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर. तो स्पीड इज इक्वल टू, मैं बोल रही हूँ कि ये 60 किलोमीटर पर आवर गिवन है. तो अब हमको पता है कि हमको तो इसको पहले कन्वर्ट करना पड़ता है. क्यों कन्वर्ट करना है? क्योंकि इन दिस केस यहाँ पे हमको क्या गिवन है, वी आर गिवन विथ 9 सेकेंड्स. वी आर गिवन विथ क्वेश्चन 9 सेकेंड्स. ठीक है, तो जब कभी हम लोग इसकी बात करेंगे, प्रॉब्लम की बात करेंगे, तो प्रॉब्लम नंबर 1 क्या है आपका? इसमें आपको एक ट्रेन गिवन है. ट्रेन इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, क्रॉसेस अ पोल इन 9 सेकेंड्स. ठीक है, तो वो 9 सेकेंड में आपका पोल क्रॉस कर रही है. तो जो यहाँ पे हमको टाइम दिया है, जो क्वेश्चन का टाइम हमको दिया दैट इज 9 सेकेंड्स. क्वेश्चन का टाइम कितना है? 9 सेकेंड्स. तो इसका मतलब टाइम इज गिवन इन दिस सेकंड, सो दैट्स व्हाई वी हैव टू कन्वर्ट दिस 60 किलोमीटर पर आवर इनटू सेकंड्स. सो हाउ कैन वी कन्वर्ट दिस 16 किलोमीटर पर आवर? तो हमको क्या करना पड़ेगा? 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो वी विल मल्टीप्लाई दिस 60 by 5/18, so we will get 50/3 मीटर पर सेकेंड. सो वी विल गेट व्हाट? 50/3 मीटर पर सेकेंड. तो मैंने आपको क्या बोला कि मैं इसको 60 इंटू क्या करूंगी? 5/18. तो ये क्या हो जाएगा आपका? 50/3. तो ये हो जाएगा अभी मीटर पर सेकेंड में आ गया. नाउ यू हैव डन विद द कन्वर्जन. नाउ व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट द लेंथ ऑफ ट्रेन. लेंथ ऑफ ट्रेन का फॉर्मूला आई हैव शोन यू. ठीक है, लेंथ ऑफ ट्रेन हम लोग कब कैलकुलेट करते हैं? मैंने अभी आपको बताया कि लेंथ ऑफ ट्रेन हम लोग कब कैलकुलेट करते हैं? जब हमको क्या है, टाइम टेकन पता है, हमको स्पीड ऑफ ट्रेन पता है, तो वी कैन कैलकुलेट द लेंथ ऑफ ट्रेन. ठीक है, तो हमारे पास में अभी लेंथ ऑफ ट्रेन कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास में स्पीड ऑफ ट्रेन इज, वी आर हैविंग द वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ ट्रेन दैट इज 50/3. ठीक है, और इससे हमको क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? टाइम टेकन, तो वो कितना है? 9 सेकेंड्स है. तो 50/3 इंटू 9 सेकेंड्स वुड बी योर 150 मीटर्स. तो पहला जो आपका आंसर आया है वो दैट इज योर 150 मीटर्स. दिस इज द वैल्यू फॉर स्पीड ऑफ लेंथ ऑफ ट्रेन दैट वी हैव कैलकुलेटेड. ठीक है, तो ये जो है हमने देखा है दैट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द
basic formula in which we have calculated the length of train. Clear? This is the very basic question of trains. Clear? किसी को कोई doubt है? Is it very clear? Can everybody getting what I'm trying to teach you, what I'm speaking? Is there any doubt? समझने में किसी को मतलब दिख नहीं रहा है स्क्रीन, ऐसा कोई इशू है तो प्लीज यू कैन ड्रॉप अ मैसेज इन चैट बॉक्स. है किसी का ऐसा कोई प्रॉब्लम? यस और नो? प्लीज ड्रॉप अ मैसेज इन चैट बॉक्स. ओके फाइन. स्क्रीन भी विजिबल है आपको, पीपीटी विजिबल है आपको, जो बोर्ड पे एक्सप्लेन किया जा रहा है इट इज ऑल्सो विजिबल, एवरीथिंग इज विजिबल. सो वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. यहाँ पे बेसिक में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क. है किसी को कोई प्रॉब्लम? नहीं. So we will move to the next question. Now we have again another basic concept of train crossing a stationary object, that is a platform or bridge. Now what do you mean by stationary object? स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मतलब जब आपका ट्रेन एक प्लेटफॉर्म से जा रहा है फॉर एग्जांपल, तो ट्रेन जब प्लेटफॉर्म से जाता है तो वहां पे ट्री होता है, वहां पे ब्रिज आता है, टर्मिनल आता है, राइट, प्लेटफॉर्म होता है. तो जब वो उसको क्रॉस करता है, when it crosses, ठीक है, तो हमको उसको कैसे तरीके से लेना है ये हम लोग देखेंगे. टाइम टेकन बाय अ ट्रेन ऑफ लेंथ L मीटर्स टू पास अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट ऑफ लेंथ B. ठीक है, फॉर एग्जांपल आपका ट्रेन जा रहा है जिसका लेंथ कितना है L है, और वो क्या कर रहा है, एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को पास कर रहा है जिसको लेंथ कितना है B मीटर्स है. is the time taken by the train to cover L plus B meters. तो ट्रेन को क्या करना पड़ेगा, खुद का टाइम as well as what that particular object time, ये दोनों को कवर करना पड़ेगा. when uh, when you are given in the question that is a platform, train, bridge, terminal is given, right, then the length of train plus length of platform is to be calculated. So what is the formula for the time taken? Time taken is equal to length of train plus length of object. In the previous concept we have gone through कि अगर हमको क्वेश्चन में पोल इज मेंशन, ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट व्हेन द पोल इज मेंशन इन द क्वेश्चन, या फिर मैन मेंशन है, ट्री मेंशन है, तो हमको सिर्फ ट्रेन का ही लेंथ कंसीडर करना है, ऑब्जेक्ट का नहीं करना है. कब? व्हेन वी आर गिवन विद पोल, मैन एंड ट्री इन द क्वेश्चन. क्लियर? लेकिन जब क्वेश्चन में प्लेटफॉर्म इज गिवन, ट्रेन is given, another train that is bridge is given, terminal is given, any stationary object is given. So what we have to do is we have to consider the length of train and length of that particular object mentioned in the question. Clear? So this is the formula for the another concept. So your problem number 2, ठीक है, problem number 2 क्या है आपका, a train of 360 meter long, a train or a train 360 मीटर लॉन्ग. अब ये ट्रेन जो लेंथ जो गिवन है वो किसका गिवन है, ये हमको ट्रेन का लेंथ गिवन है, इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर, और ट्रेन का ही हमको स्पीड इज गिवन दैट इज 45 किलोमीटर पर आवर. एंड इन व्हाट टाइम विल इट पास अ ब्रिज 140 मीटर पर, सॉरी 140 मीटर लॉन्ग इज. अब उसने क्या बोला है कि वी हैव गिवन विद अ ट्रेन whose speed is 45 किलोमीटर पर आवर and whose length is 360 मीटर्स. बट वहां पे जब वो ट्रेन ट्रेवल करेंगे तो वो क्या कर रही है, एक ब्रिज को पास कर रही है, उस लेंथ इज 140 मीटर. मतलब यहाँ पे हमको दो लेंथ मिल गई, कौन सी, एक ट्रेन की लेंथ और एक मिल गई हमको ब्रिज की लेंथ. अब हम ये दोनों इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे एज पर डिस्कशन वी हैड, length of train plus length of object. Now what is the object over here? Object is your bridge, object is your bridge. तो हम ये दोनों की लेंथ क्या करेंगे, ऐड करेंगे. सो व्हाट इज द बेसिक फॉर्मूला फॉर स्पीड? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो हमारे पास में डिस्टेंस है, डिस्टेंस मतलब उसकी लेंथ है, राइट, एंड व्हाट वी हैव अनदर थिंग इज वी हैव स्पीड ऑफ ट्रेन. सो उसने क्या बोला है, व्हाट इज द टाइम, सो वी हैव टू कैलकुलेट द टाइम. क्लियर? सो वी विल कैलकुलेट द टाइम. Clear? So what is the formula for that? Formula for that is just wait.
Okay, so we are given with a train having a length of 360 meter and a bridge having a length of 140 meters. So basically we are adding this two. We are adding this two. So इसको add करने के बाद में what values we will get? We will get 360 plus that is 140. क्लियर? हमको ये दो चीजें मिल गई. अब टाइम टेकन निकालना है तो टी निकालना है हमको. अब उसके नीचे में गिवन क्या, स्पीड दैट इज 40 किलोमीटर पर आवर, 45 किलोमीटर पर आवर. तो अब ये किलोमीटर पर आवर गिवन है और यहाँ पे वैल्यूज हमको मीटर्स में गिवन है, तो हमको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा. सो हाउ वी विल कन्वर्ट दिस वैल्यू इनटू मीटर पर सेकंड, दैट इज मल्टीप्लाइड बाय 5 by 18. So this 45 is multiplied by 5 into 18. So you will get what? The speed of the train, that is a 45 into 5 by 18 is nothing but your 25 by 2, right? So 25 by 2 and this addition of this 360 and 140. How much we will get? This is 500. So this 500 divided by your 25 by 2. So this 2 will get in the numerator. So 500 into 2 is 100 and 100, sorry, 1000, not 100, 1000, and this 1000 is divided by 25. So you will get what? You will get 40 seconds as the answer. So your time in seconds is equal to 40 seconds. Clear? So we are getting this calculation like that is time second is equal to length of train plus length of what? Plus length of that particular object mentioned. Clear? And this particular object mentioned, we got the sum of this 360 plus 140 is equal to 500, and the speed of train that we have converted it from kilometers per hour to meter per second is equal to 25 by 2. So 500 divided by 25 by 2, this 2 from the denominator will get multiplied in numerator, that is 500 into 2, that is equal to 1000, and 1000 divided by 25 is equal to 40 seconds. Clear? So this is the basic problem. This is the basic problem on the formula number 2 that we have mentioned in the question. Clear? So these are the very basic problems. Now we will move to the third question. Your third question is, a train 240 meter long passes a pole in 40 seconds. वो क्या बोल रहा है कि हमारे पास में ट्रेन है, इसका लेंथ इज 240 meters long, passes a pole in 24 seconds. How long will it take to pass a platform 650 meter long? मतलब उसने क्या बोला है अभी कि हमारे पास में एक ट्रेन गिवन है एंड दैट ट्रेन जो है वो क्या कर रही है, पोल को पास करने में 24 सेकेंड्स टाइम ले रही है. ठीक है, पोल को पास करने में 24 सेकेंड्स का टाइम ले रही है. तो आपके पास में ट्रेन का लेंथ आ गया, आपके पास में अभी टाइम भी आ गया, लेकिन वो स्पीड नहीं आया. जो ट्रेन क्या कर रही है, पोल को पास कर रही है 24 सेकेंड में, तो उसका स्पीड नहीं है. पहले वाले सेंटेंस की हम लोग बात कर रहे हैं और यहाँ पे पोल है. सो वी हैव टू ओनली कंसिडर दी लेंथ ऑफ ट्रेन. वी विल नॉट गो टू लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म. वी विल टॉक अबाउट द लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म लेटर ऑन. लेकिन हमको पहले स्टेटमेंट से व्हाट वी आर गेटिंग इज वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ ट्रेन. अ ट्रेन ऑफ 240 मीटर लॉन्ग, मतलब ट्रेन का लेंथ गिवन है और उसका टाइम इज गिवन, सो वी विल कैलकुलेट द स्पीड. सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर स्पीड? So what is the formula for speed to calculate the value? Sorry. So speed is equal to what? Speed is equal to distance upon time. Speed क्या होता है? It upon time. तो speed is equal to distance upon time होता है. तो ये speed अगर आपका distance upon time है, ठीक है, तो distance मतलब होता है आपके ट्रेन का लेंथ कितना है 240, और आपका टाइम है, हाउ मच टाइम इज मेंशन इन द क्वेश्चन, दैट इज 24. तो आपका स्पीड कितना हो गया, ये तो कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड. सो व्हेन वी टॉक अबाउट द स्पीड ऑफ द ट्रेन, तो स्पीड ऑफ द ट्रेन क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. ठीक है, तो स्पीड ऑफ द ट्रेन क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा, एंड दैट डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू
your speed of the train and we will get 10 meter per second. ठीक है, तो ये हमारा क्या रहेगा 10 मीटर पर सेकेंड रहेगा. Now what is the next point? Have you gone through this concept? Have you gone through this concept? Very clear about this, how we have calculated this speed is equal to distance upon time, because train का जो length है, length is mentioned, and when the length is mentioned, so we will have to find out the value, that is 240 by 24, and when we talk about the 240 by 24, we will get the speed of the signal, that is 100 meter per second. Clear? So this is the value for your speed. Clear? So now the next part of the question says, how long will it get to pass a platform? Clear? So how long will it get to pass the platform? This time taken to pass the platform. What we have said is, we have said that when the train along with the other object is mentioned in the question, that is a platform, uh, bridge and all, so we have to consider the train of length of that particular train, and we have to consider that platform length. ठीक है, ये दोनों हमको ऐड करना पड़ेगा. ऐड करने के बाद में now we are given with what? We have calculated the speed. Speed is equal to how much? 10m. और पूछा क्या है क्वेश्चन में? हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू पास. मतलब हमको टाइम इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन. सो टाइम टेकन टू पास द प्लेटफॉर्म इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म एंड डिवाइडेड बाय व्हाट? डिवाइडेड बाय 10. 10 क्या है आपका? 10 इज द स्पीड. 10 क्या है आपका? 10 इज द स्पीड. तो जब 10 आपका स्पीड है तो 10 स्पीड से आप डिवाइड करेंगे तो ये 240 प्लस 650 कितना हो जाएगा? 240 प्लस 650 आपका एक वैल्यू रहेगा. ठीक है, और वो जो वैल्यू रहेगा वो हो जाएगा आपका 8. ठीक है, और डिवाइडेड बाय क्या करना पड़ेगा आपको? उसको 10 से डिवाइड करना पड़ेगा. सो यू विल गेट 89 सेकेंड्स. ये 8 जो आपका जो वैल्यू रहेगा 240 प्लस 650, you will get value and this value get divided by 10, so you will get the exact value of time that we are calculating. Clear? तो ये जो हो गया, दिस इज योर प्रॉब्लम नंबर 3, जिसमें हमने दोनों कॉन्सेप्ट्स को कवर करने की कोशिश की है. पहला कॉन्सेप्ट जो था आपका वो यहाँ से यहाँ तक था, जिसमें हमने स्पीड ऑफ ट्रेन फाइंड आउट किया है. एंड द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या था कि यहाँ पे हमको प्लेटफॉर्म भी गिवन है. तो व्हाट वी हैव टू डू? वी हैव टू ऐड दी ट्रेन का लेंथ एंड प्लेटफॉर्म का लेंथ. ठीक है, ये दोनों के लेंथ को क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा, सो दैट वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू फॉर टाइम विच इज रिक्वायर्ड टू पास द प्लेटफॉर्म. ठीक है, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 89 सेकेंड्स. ठीक है, तो योर ऑप्शन बी वुड बी द आंसर. Now the next question is again the length of the bridge which a train 130 meters long and traveling at a 45 kilometer per hour can cross in 30 seconds is. मतलब what we have to calculate? We have to calculate the length of bridge. We have to calculate what? The length of bridge. How would you calculate the length of bridge? अगर आपको length of bridge को calculate करना है तो again we have that formula, T is equal to length of train plus length of bridge upon speed. ये हमारा फॉर्मूला है. ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे ट्रेन की बात कर लेते, ट्रेन के पैरामीटर्स को देख लेते. तो ट्रेन के पैरामीटर्स क्या है? ट्रेन 130 मीटर्स लॉन्ग. ट्रेन 130 मीटर्स लॉन्ग मतलब आपका जो ट्रेन है वो कितना है? उसका लेंथ कितना है? 130 है. प्लस उसका ट्रैवलिंग एट 45 किलोमीटर पर आवर. दैट स्पीड इज मेंशन्ड इन द क्वेश्चन. Clear? The speed is mentioned in the question, that is 45 किलोमीटर पर आवर and can cross in 30 seconds. तो उसको हम लोग कितने इसमें क्रॉस कर रहे हैं? 30 सेकेंड में क्रॉस कर रहे हैं. ठीक है, तो 30 सेकेंड में जब हम लोग उसको क्रॉस कर रहे हैं तो हमको सबसे पहले स्पीड निकालना पड़ेगा मीटर पर सेकेंड में. तो जब हम लोग उसको मीटर पर सेकेंड में निकालेंगे, ठीक है, जब हम लोग उसको मीटर पर सेकेंड में निकालेंगे तो अब हम लोग क्या करेंगे? पहले उसका स्पीड निकालेंगे. फिर अब यहाँ पे तो हमको लेंथ ऑफ ब्रिज इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, सो वी हैव टू कैलकुलेट दैट वैल्यू. तो हम लोग उसका फॉर एग्जांपल x मीटर्स पकड़ लेंगे और हम सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड वी विल ट्राई टू फाइंड द वैल्यू फॉर लेंथ ऑफ ब्रिज. ठीक है, इज इट क्लियर? सो नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट टास्क टू this find out the value of length of bridge?
तो लेंथ ऑफ ब्रिज अगर हमको फाइंड आउट करना है तो अगेन वी हैव टू recalculate all the things that are mentioned in the question. So now we are given with uh, ट्रेन का लेंथ, ठीक है, एंड उसका ट्रैवलिंग टाइम दैट इज 45 किलोमीटर पर आवर। तो सबसे पहले इसके स्पीड को हम लोग क्या करते हैं, मीटर में कन्वर्ट करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका 45 इज नॉट विजिबल आई थिंक। तो ये हो जाएगा 45, इसको मीटर में कन्वर्ट करना है तो वो हो जाएगा आपका 5/18। सो स्पीड हमने जो कन्वर्ट किया है स्पीड ऑफ ट्रेन वो क्या निकल जाएगा, दैट इज इक्वल टू योर, इसको कैलकुलेट कर लो। तो ये हो जाएगा आपका 25/2। ठीक है, तो ये आपका सेकंड में निकल गया। अब हमने क्या बोला है कि हमको कैलकुलेट करना है लेंथ ऑफ ब्रिज, तो हमारे पास में फॉर्मूला क्या है, टाइम टेकन इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ दैट प्लेटफॉर्म जो भी गिवन है। तो हमको यहाँ पे ब्रिज गिवन है, मैं बी लिख रही हूँ, अपॉन क्या होता है, स्पीड होता है। तो अब हमारे पास में व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट, वी हैव टू कैलकुलेट दैट इज द लेंथ। ये लेंथ निकालना है हमको, ये लेंथ निकालना है हमको, ठीक है। ये लेंथ जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, जब ये लेंथ हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो लेंथ का मतलब जो लेंथ है वो लेंथ का वैल्यू क्या होगा, ठीक है, वो लेंथ का वैल्यू क्या होगा ये हमको कैलकुलेट करना है। तो लेंथ का जो वैल्यू होगा वो लेंथ बी दैट वी हैव टू कैलकुलेट। तो ये बी का जो वैल्यू हमको कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे, टी का वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे। टी का वैल्यू कितना है हमारे पास में, 30 सेकेंड है। एस का वैल्यू कितना है हमारे पास में, एस का वैल्यू इज 25/2, ठीक है। और हमको लेंथ ऑफ ट्रेन भी पता है कितना है, दैट इज 130 मीटर्स, ठीक है। तो हमारा क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। तो देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला है कि ये टी इज इक्वल टू क्या है आपका, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस होता है लेंथ ऑफ ब्रिज, और डिवाइड में क्या होता है, इट इज द स्पीड। तो ये टाइम इज इक्वल टू 30 है, लेंथ ऑफ ट्रेन हमको कितना गिवन है, 130 गिवन है। हमको लेंथ ऑफ भी नहीं पता है तो हमने इसको एक्स अज्यूम कर लिया है। और स्पीड हमारा कितना आया था, 25/2 आया था। तो इसको अगर हम लोग सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 130 प्लस। अब देखो इसको सोल्व करेंगे तो ये कैसे हो जाएगा आपका, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। तो टू को आप मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर चले जाएगा टू न्यूमरेटर में, और ये 30 और ये क्या हो जाएगा 25, ठीक है। तो अगर ये टू ऊपर चले गए, ये टू अगर ऊपर चले गए, दिस विल बिकम, ठीक है, नाउ दिस विल बिकम 30 × 25, और ये हो जाएगा 2 × 130 प्लस एक्स, क्लियर। तो ये हो जाएगा आपका 25 × 3 750 which is equal to, now again this would be your 13 × 2 is प्लस, ठीक है। अब ये माइनस कर देंगे हम लोग, 750 माइनस ये, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 245, नहीं, ये अगर हम लोग इसको 260 को यहाँ से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 590 हो जाएगा, हाँ, ठीक है। तो ये माइनस करने के बाद में अब हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे टू से, ठीक है। ये जो 2x है ना, इससे हमको डिवाइड करना पड़ेगा, तो टू से जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग इज, आपने 750 माइनस ये कर दिया, देखो 750
-260 कर दिया, डिवाइडेड बाय 2 कर दिया, तो ये x हो जाएगा। फिर आप जब इसको माइनस करेंगे तो ये 500 समथिंग निकलेगा, ठीक है। उसके बाद डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो ये x इज इक्वल टू 240 मीटर्स। तो ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 245 मीटर्स। ये आपका रहेगा आंसर, दैट इज द लेंथ ऑफ ब्रिज। दिस इज द फॉर्मूला नंबर, दैट इज द फॉर्मूला नंबर, मतलब जो हमने सेकेंड वाला देखा था, जिसमें लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ एनी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट दैट वी हैव टू कंसीडर, ठीक है। दिस इज द प्रॉब्लम नंबर 4। नाउ वी विल मूव टू द प्रॉब्लम नंबर 5। अब प्रॉब्लम नंबर 5 की जब हम लोग बात करेंगे, ठीक है, अगर मैं बोल रही हूँ कि आपके बस में कोई, जस्ट सेकेंड, प्रॉब्लम नंबर 5 की बात कर रहे हैं, ठीक है। प्रॉब्लम नंबर 5 की बात कर रहे हैं, 4 तक हमारा हो गया। अब हम लोग प्रॉब्लम नंबर 5 की बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या हो रहा है कि प्रॉब्लम नंबर 5 जो है, ट्रेन पासिस अ स्टेशन प्लेटफॉर्म। अब ट्रेन क्या कर रही है, स्टेशन प्लेटफॉर्म को पास कर रही है, एंड इन 36 सेकेंड्स, उसका टाइम ड्यूरेशन कितना है, 36 सेकेंड्स। एंड अ मैन स्टैंडिंग ऑन अ प्लेटफॉर्म इज 20 सेकेंड। और एक इंसान, जो एक मैन है जो खड़ा है प्लेटफॉर्म पे, ठीक है, उसको पास करने में 20 सेकेंड लग रहे हैं, ठीक है। इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 54 किलोमीटर पर आवर, एंड व्हाट इज द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म, ठीक है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म, तो हमको प्लेटफॉर्म का लेंथ निकालना है। तो अब सबसे पहले हमको समझ में आ रहा है कि हमको स्पीड ऑफ द ट्रेन इज गिवन। इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 54 पॉइंट किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब हमारे पास में स्पीड ऑफ द ट्रेन है, तो कितना उसको कन्वर्ट कर लेंगे मीटर पर सेकंड में। ये तो बहुत समझने वाली चीज है। नाउ नेक्स्ट इज योर लेंथ ऑफ ट्रेन, हमको कैलकुलेट करना है। तो लेंथ ऑफ ट्रेन कैसे कैलकुलेट करेंगे, व्हाट इज द लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म पूछा है, लेकिन उसके पहले क्या बोला है, अ ट्रेन इज पासेस अ स्टेशन प्लेटफॉर्म इन 36 सेकेंड, एंड अ मैन स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म इज 20 सेकेंड। मतलब दोनों का क्या गिवन है, हमको टाइम गिवन है, ठीक है, टाइम गिवन है। इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 54, लेकिन उसका लेंथ गिवन है क्या, लेंथ नहीं मेंशन है। तो लेंथ ऑफ द ट्रेन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाइम टेकन इनटू स्पीड। तो अब हमारे पास में टाइम टेकन कितना है, 20 सेकेंड्स है। और जो हमने मैन जो है, उसका जो प्लेटफॉर्म पे जो खड़ा था, उसका जो हमने टाइम निकाला है वो है 20 सेकेंड, और उसका जो स्पीड है वो हमने ऊपर में कन्वर्ट किया है, दैट इज 15। तो 20 इंटू 15 इज इक्वल टू 300 मीटर, ठीक है, 300 मीटर। लेट द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म। अब लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म हमको नहीं पता है, हमको लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म पता है क्या, वी डोंट नो द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म। लेंथ ऑफ द ट्रेन भी हमको पता नहीं थी, लेकिन हमने लेंथ ऑफ द ट्रेन निकाल ली है। कितनी निकाली है, 30 मीटर्स। कैसे निकाले हमने, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो ट्रेन, देखो हमने पहले वाले क्राइटेरिया में बोला था कि अगर पोल, मैन और ट्री रहता है, तो वी विल ओनली कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द ट्रेन। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है, यहाँ पे हमको मैन दिख रहा है। तो मैन मतलब हमको सिर्फ लेंथ ऑफ ट्रेन कैलकुलेट करना है, जिसके लिए हमारे पास में टाइम कितना गिवन है, 20 सेकेंड, और उसका स्पीड कितना गिवन है, 54 किलोमीटर पर आवर। तो यहां से हम लोग क्या निकालेंगे, लेंथ ऑफ ट्रेन, ठीक है। अब ये लेंथ ऑफ ट्रेन निकालने के बाद में हमको प्लेटफॉर्म की बात चल रही है, प्लेटफॉर्म एक दूसरा निकालना है, उसका लेंथ निकालना है। तो लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म ने अगर एक्स ले लिया, तो अब हमारे पास में क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ ट्रेन कितना निकला, 300 प्लस एक्स हो जाएगा, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय उसको स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो हमको क्या मिल जाएगा, टाइम टेकन टी। देखो इसको डिस्कस करते हैं, तो इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। लेट्स सी व्हाट दे आर सेइंग, अ ट्रेन पासेस अ स्टेशन प्लेटफॉर्म इन 30 सेकेंड। देखो जब उसने प्लेटफॉर्म बोला है, तो अब हमको इसको क्या करना है, हमको इसको भूल जाना है, ठीक है। प्लेटफॉर्म रहते तो हम सिर्फ ट्रेन का लेंथ निकाल सकते क्या, नहीं, वी हैव टू ऐड दी ट्रेन, लेंथ ऑफ ट्रेन एज वेल एज प्लेटफॉर्म। तो ये हमारे काम का नहीं है, क्योंकि हमको ट्रेन का लेंथ गिवन ही नहीं है। एंड अ मैन स्टैंडिंग ऑन अ प्लेटफॉर्म,
इज 20 सेकेंड। मतलब उसने क्या बोला है कि एक ट्रेन है, जब वो ट्रेन पास मतलब ट्रेवल कर रही है तो वो प्लेटफॉर्म को क्या कर रही है, प्लेटफॉर्म को भी क्रॉस कर रही है 36 मिनट सेकेंड्स में, और वो जब मैन को कर रही है तो उसको लग रहा है 20 सेकेंड्स। तो हमको पता है कि जब दोनों क्वेश्चन में गिवन है, जब दोनों क्वेश्चन में गिवन है तो अल्टीमेटली हमको दोनों का लेंथ क्या करना है, ऐड करना है। लेकिन हमको यहाँ पे ट्रेन का लेंथ गिवन ही नहीं है। तो अगर हम ये नीचे वाले पोर्शन से चले, मतलब हमारे पास में दिस इज टाइम, ठीक है, ट्रेन है ये, ट्रेन पास हो रही है और वहां पे उसको कौन खड़ा है, मैन खड़ा है वहां पे, और उसने उसको क्रॉस कर दिया। तो ये केस में वी कैन कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द ट्रेन। तो लेंथ ऑफ द ट्रेन इज इक्वल टू स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो स्पीड हमारे पास में कितना है, स्पीड इज 54, और इसको मीटर पर सेकंड में करना पड़ेगा तो ये 5/18 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू डी अपॉन टी। टी कितना लगा इसको क्रॉस करने के लिए, 20 सेकेंड, ये 20 सेकेंड। अब आप डिस्टेंस का वैल्यू निकालेंगे तो ये कैसे हो जाएगा, 3, और ये हो जाएगा 5 × 3 इज 15, 15, ठीक है। तो ये आपका इधर लेफ्ट हैंड साइड में तो 15 वैल्यू आ गया, और ये 15 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 15 के साथ में ये 20 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वो कितना हो जाएगा, तो 15 × 20 दैट इज 300 मीटर। तो ये जो 300 मीटर निकला है, ये डिस्टेंस निकला, मतलब लेंथ ऑफ क्या निकला है, ट्रेन निकला है। अब लेंथ ऑफ ट्रेन आपके पास में आ गया, तो ये लेंथ जो है ट्रेन का ये कितना आ गया, 300 मीटर। ठीक है, ये लेंथ ऑफ ट्रेन है। ठीक है, दिस इज द लेंथ ऑफ ट्रेन, ये 300 मीटर है। और उसके बाद में आपको और क्या गिवन है कि जब ट्रेन प्लेटफॉर्म को पास कर रहा है तो वो 36 है। ठीक है, जब वो ट्रेन प्लेटफॉर्म को पास कर रहा है तो 36 सेकेंड का टाइम हमको बता रहा है, और स्पीड गिवन है। तो हमको निकालना गया अल्टीमेटली लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। तो जब कभी लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म है तो हमारे पास में एक ही फॉर्मूला है, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म अपॉन स्पीड, ये हमारे पास में फॉर्मूला है। तो अभी देखो इसको हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं। अब यहाँ पे टाइम हमको लगेगा, अब टाइम हम लोग कौन सा लेंगे, जो प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रहा है वो कितना था, दैट इज 36। समझ में आया, ये 36 लेंगे क्योंकि अभी प्लेटफॉर्म की बात चल रही है, प्लेटफॉर्म को इंक्लूड किया है। और लेंथ ऑफ ट्रेन कितनी है, 300। लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म हमको नहीं पता तो x, और हमको स्पीड पता है कितनी थी, 15 थी मीटर पर सेकेंड में। तो अब ये कैसे हो जाएगा, देखो ये 36 इंटू क्या कर देंगे हम, 15 कर देंगे, और डिवाइड बाय क्या कर देंगे, 300 कर देंगे। तो ये 36 इंटू 15 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 975 प्लस, तो ये हो जाएगा 40। ठीक है, तो ये आपका 540 माइनस क्या करेंगे, 350 करेंगे। ठीक है, 540, अच्छे से लिखती हूँ, 540, ये 540 कैसे है समझ में आपको, हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 15 6 जा 90, तो ये 0 कैरी 9, 15 इंटू 3 55, 45 प्लस 9 54। ठीक है, एक्सक्यूज मी। तो ये 540 हो गया, तो 540 इज इक्वल टू 300 माइनस एक्स। तो 540 माइनस 300 करेंगे तो ये निकल जाएगा 240 मीटर। तो ये x मतलब क्या है हमारा, दैट इज लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। So the value of length of platform is equal to 240 meters. This is your problem number 5. Clear? This is the problem number 5 जिसका आंसर है 240 मीटर, that is the option number B, that's 240 meters. Now till now किसी को बेसिक प्रॉब्लम्स में कोई भी अगर डिफिकल्टी है तो यू कैन आस्क, किसी को है कोई डिफिकल्टी है, कोई प्रॉब्लम है, यू कैन आस्क, यू कैन ड्रॉप अ मैसेज ओवर हियर। है कि किसी को प्रॉब्लम, प्लीज ड्रॉप अ मैसेज in chat box. Is there any doubt, any query?
Shall I continue? I'm waiting for your message. Shall I continue? Fine. Now the next problem. Now again we have one more formula, that is a time of rest per hour. So formula for time of rest per hour is difference in average speed upon the speed without stoppage into 60. This is the formula, right? So how can we calculate the value? Let's we will discuss numerical excluding stoppages. ठीक है, जितने भी stoppages है, ठीक है, वो सारे छोड़ के स्पीड ऑफ द बस इज 54 किलोमीटर पर आवर. स्पीड कितना है उसका? 54 किलोमीटर है, स्टॉपेज को छोड़ के. जितने भी स्टॉपेज है सबको छोड़ के 54 किलोमीटर पर आवर है. एंड इंक्लूडिंग स्टॉपेज, जितने भी स्टॉपेज है उनको सबको, स्टॉपेज मतलब जो हम लोग स्टॉप लेते हैं, जो ट्रेन स्टॉप लेती है एवरी प्लेटफॉर्म पे या फिर कुछ सेलेक्टेड प्लेटफॉर्म पे, ठीक है, स्टेशन पे जो स्टॉप होते हैं वो स्टॉपेज की बात कर रहे हैं हम लोग. तो वो इंक्लूड किया जाए तो 45 है, जो उसको एक्सक्लूड किया जाए तो वो 54 है. और हाउ मेनी मिनट डज द बस स्टॉप पर आवर, तो एक घंटे में मतलब पर आवर के हिसाब से कितना टाइम वो रुकती है. ठीक है, वो कितना टाइम वो रुकती है ये हमको निकालना है. तो हमने क्या बोला कि इंक्लूडिंग स्टॉपेज और एक्सक्लूडिंग स्टॉपेज, हमारे पास में ऐसी दो स्पीड्स है. तो हमने फॉर्मूले में मेंशन किया है कि डिफरेंस इन एवरेज मतलब क्या है? डिफरेंस इन एवरेज स्पीड मतलब जो दो स्पीड्स आपको गिवन है 54 एंड 45, उनका डिफरेंस वी हैव टू कैलकुलेट. तो 54 माइनस 45 कितना हो जाएगा वो आपको कैलकुलेट करना है. ठीक है, अपॉन स्पीड ऑफ स्पीड विदाउट स्टॉपेज. स्पीड विदाउट स्टॉपेज मतलब, विदाउट स्टॉपेज मतलब ये 54 एक्सक्लूडिंग. ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका? दैट इज 54. मतलब ये हो जाएगा आपका 54 में से 45 गया तो वो आपका हो जाएगा 9/54. ठीक है, इंटू 60. ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा वो आपको कैलकुलेट करना है. तो इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो यू विल गेट 10 मिनट्स. ठीक है, पर आर वो क्या कर रहा है, स्टॉपेज जो है वो उतना बस हर स्टेशन पे बोलो, हर स्टॉप पे बोलो, स्टॉप हो रहा है. क्लियर? तो ये हो गया आपका टाइम ऑफ रेस्ट पर आवर. दिस इज योर टाइम ऑफ रेस्ट पर आवर. क्लियर? तो ये हो जाएगा आपका एक जो बेसिक जो चीजें हैं वो बेसिक चीजें हमने यहाँ पे सारी कंप्लीट कर ली है फॉर्मुलेस को लेके. और एग्जाम में जो पूछते हैं, क्वेश्चन गेट एग्जाम में जो पूछते हैं वो बहुत डिफिकल्ट लेवल का नहीं होता है, मॉडरेट लेवल का ही होता है. ठीक है, तो ये हमारा एक जो बेसिक टाइप ऑफ क्वेश्चंस थे वो सारे के सारे हमने कवर कर लिए. नाउ द नेक्स्ट इज योर प्रॉब्लम्स ऑन टू ट्रेन्स. प्रॉब्लम्स ऑन टू ट्रेन्स मतलब जब हम लोग दो ट्रेन्स की बात करेंगे, जब दो ट्रेन्स क्या करेंगे, साथ में चलेंगे. ठीक है, तो वो हमको निकालना है कि जब दोनों ट्रेन साथ में चलती है तो क्या चेंजेस हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं. क्लियर? Two trains running in opposite directions cross a man standing on a platform in 27 seconds and 17 seconds respectively. दो ट्रेन चल रही है ऑपोजिट डायरेक्शन में. देखो दो ट्रेन चल रही है ऑपोजिट डायरेक्शन में. क्लियर? तो ये हम लोगों ने दो ट्रेन की बात की थी रिलेटिव स्पीड के लिए, आगे में देखेंगे क्या यूज है उसका. Across a man standing on a platform in 27 seconds and 17 seconds respectively, and they cross each other in 23 seconds. और वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं. ठीक है,
दो ट्रेन ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, पहली ट्रेन जो जा रही है, ठीक है, मतलब दो ट्रेन ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है जो मैन को क्रॉस कर रही है, जो प्लेटफॉर्म पे खड़ा है। पहली ट्रेन जो है वो 27 सेकेंड, ठीक है, और दूसरी जो है वो 17 सेकेंड रेस्पेक्टिवली। दे क्रॉस ईच अदर। अब दो दो ट्रेन जो है वो एक दूसरे को क्रॉस कर रही है 23 सेकेंड्स में। द रेशियो ऑफ देयर स्पीड्स, तो आपको दोनों के स्पीड्स का रेशियो निकालना है, मतलब आपको आपको दोनों की स्पीड्स को कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब दोनों ट्रेन की स्पीड्स यहाँ पे गिवन नहीं है, तो जो दोनों ट्रेन की जो स्पीड रहेंगी वो हमको पहले तो अज्यूम करनी पड़ेगी। तो हम क्या बोलेंगे कि हमने दो ट्रेन की जो स्पीड है उसको अज्यूम किया है, लेट द स्पीड्स ऑफ टू ट्रेन्स बी x मीटर पर सेकेंड एंड y मीटर पर सेकेंड रेस्पेक्टिव, ठीक है। उसके बाद में हम लोग क्या बोल रहे हैं, हमको निकालना है लेंथ ऑफ द ट्रेन। पहले ट्रेन का लेंथ, तो लेंथ हम लोग कैसे निकालते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब मुझे डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड हमको पता है क्या, नहीं पता है, ठीक है, लेकिन डिस्टेंस टाइम हमको पता है, तो टाइम कितना है 27 सेकेंड, और हमने उसका स्पीड कितना अज्यूम किया है, एक्स अज्यूम किया है, तो 27 इंटू एक्स हो जाएगा 27x क्या हो जाएगा आपका लेंथ ऑफ द फर्स्ट ट्रेन। वैसे लेंथ ऑफ द सेकेंड ट्रेन निकालेंगे तो वो हो जाएगा 17 y मीटर्स, क्यों, क्योंकि हमने सेकेंड ट्रेन का y स्पीड अज्यूम किया है, और उसके लिए जो टाइम आपको लगने वाला है दैट इज योर 17 सेकेंड्स, क्लियर। तो ये हो जाएगा आपका लेंथ ऑफ द सेकेंड ट्रेन इज 17 y मीटर्स, ठीक है। तो ये हो गया आपका अजम्पशन, स्पीड अज्यूम किया, लेंथ अज्यूम किया। अब आपको निकालना क्या है कि व्हेन दे क्रॉस ईच अदर इन 23 सेकेंड्स, तो हमको उनके स्पीड्स को निकालना है, उनके स्पीड का रेशियो निकालना है। तो देखो मैंने यहाँ पे एक फॉर्मूला मेंशन किया है, टाइम टेकन टू क्रॉस ईच अदर, उसका फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ लेंथ ऑफ ट्रेन्स अपॉन द रिलेटिव स्पीड, सम ऑफ लेंथ ऑफ ट्रेन्स अपॉन द रिलेटिव स्पीड। तो हमको तो यहाँ पे लेंथ ऑफ ट्रेन भी नहीं पता है, और हमको यहाँ पे रिलेटिव स्पीड निकालना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होगा वो देखते हैं। तो जब हम लोग इसकी बात करेंगे तो सबसे पहले फॉर्मूले को लिख देते हैं, ठीक है। फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, ठीक है, इसका फॉर्मूला देखो, टाइम टेकन टू क्रॉस, देखो हमारे पास में क्या है, दो दो ट्रेन की स्पीड है, अगर मैं बोल रही हूँ कि T1 की स्पीड कितनी है, x है, T2 की है, मैं यूनिट्स नहीं लिख रही हूँ, ठीक है, y है। फिर ये क्या हो गया, स्पीड्स हो गया किसकी, तो मैं इसको एक काम कर लेती हूँ, S1 लिख देती हूँ, तो इट इज बेटर टू अंडरस्टैंड। स्पीड 1 है और ये स्पीड 2 है, ठीक है, स्पीड होगी। अब उसके बाद में मैं क्या बोल रही हूँ, लेंथ निकालना है मुझे, तो लेंथ जो है ट्रेन 1 की जो लेंथ निकलेंगी वो निकलेंगी स्पीड इंटू टाइम 27x, और ये जो लेंथ है दैट इज लेंथ जो है वो T2 की है, वो कितनी निकलेंगी 17y, ठीक है। अब ये तो हमने निकाल लिया। अब हमको क्या बोल रहा है, फॉर्मूला क्या बोलता है कि अगर हमको टाइम टेकन टू क्रॉस ईच अदर ट्रेन निकालना है, तो उसके लिए हमारे पास में फॉर्मूला है t इज इक्वल टू सम ऑफ लेंथ, किसका सम, ट्रेन का, ठीक है, और उसके अपॉन रिलेटिव स्पीड है, रिलेटिव स्पीड। तो अब हमको सम ऑफ लेंथ जो है वो हमको पता नहीं, लेकिन हम लेंथ T1 और T2 27x प्लस 17y हमने निकाली है, तो इसको लिख लेते हैं 27x प्लस 17y अपॉन रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड कैसे निकालेंगे हम, रिलेटिव स्पीड क्या होती है, जब ट्रेन ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है तो रिलेटिव स्पीड इज सम ऑफ देयर स्पीड, देखो नीचे में नोट में लिखा है, ठीक है। रिलेटिव स्पीड क्या होती है, रिलेटिव स्पीड की अगर हम लोग बात करेंगे, तो रिलेटिव स्पीड में देखो क्या बोल रहा है, जब रिलेटिव स्पीड की बात करेंगे तो रिलेटिव स्पीड में हम क्या बोल रहे हैं, जब वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है तो क्या हो रहा है, आपके स्पीड का एडिशन हो रहा है, हमको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट्स मूविंग इन द सेम डायरेक्शन तो दोनों का सब्सट्रैक्शन हो रहा है, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो दोनों का क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है। तो हियर वी आर कंसिडरिंग दिस रिलेटिव स्पीड, ठीक है, क्योंकि दोनों क्या है ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका एडिशन। तो एडिशन को कैसे लिखेंगे हम लोग,
x प्लस वाई। तो ये हमने एडिशन लिख दिया x प्लस वाई। क्लियर। अब टाइम t, टाइम t कैसे निकालेंगे? टाइम t हमको पता है ना कि दे क्रॉस ईच अदर इन 23 सेकेंड्स बोला था। दे क्रॉस ईच अदर इन 23 सेकेंड, तो ये आपका 23 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 23। तो अब देखो इसको सॉल्व करना है, सिंपल इक्वेशन बन गया हमारा। तो ये 23 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 23x प्लस 23y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 27x प्लस 17y। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे होगा? अब ये देखो 27x और 23x, बरोबर। तो इसको माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 4x। और ये वाई वाई को भी करेंगे, तो वाई वाई को करेंगे तो ये है 23 और 17, ये हो जाएगा आपका 6y। तो आपके स्पीड का रेशियो जो होगा x इज टू वाई, ठीक है, x इज टू वाई कितना हो जाएगा? अब ये आप निकालो, क्या हो जाएगा? 6/4, 6/4 हो जाएगा। तो 6/4 को और थोड़ा कम करेंगे तो ये 3:2। तो आपका जो क्वेश्चन में आंसर गिव ऑप्शन गिवन है, दैट इज योर 3:2 इज गिवन इन द क्वेश्चन। ठीक है, तो अब अगर हम लोग इसकी बात करेंगे, प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन्स की बात कर रहे हैं, तो देखो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है और हमारा जो आंसर है वो कितना आया है? 3:2 आया है, जो है हमारा ऑप्शन नंबर बी। एग्जाम में आपको ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, in such a way you can calculate the value, that is the ratio of the speeds. Now the next question is on the same, that is the problems on two trains. ठीक है, this is the first question in which we have calculated the ratio of the speed by using the time taken to cross each other. ठीक है, ये formula से, this is the fifth formula that we have gone through. Now your problem number 8 is two trains are equal in length, are running on parallel. Now we are going through the concept of parallel. What do you mean by parallel? ठीक है, two trains of equal length. अब वो क्या बोल रहा है कि दोनों trains का length is equal, दोनों trains का length is equal, and वो कैसे move हो रहे? They are moving parallelly, दोनों साथ में जा रहे in the same direction at 46 किलोमीटर पर आवर and 360 किलोमीटर पर आवर। दोनों का क्या गिवन है? हमको दोनों का स्पीड इज गिवन, हमको दोनों का स्पीड इज गिवन। ठीक है, तो अब फास्टर ट्रेन पासेस द स्लोअर ट्रेन इन 36 सेकेंड्स। जो ट्रेन फास्ट चल रही है, कौन सी फास्ट चल रही है? 46 वाली, पहली वाली। वो क्या कर रही है? दोनों उसको क्रॉस कर रही है फास्टर ट्रेन, मतलब ट्रेन 1 क्या कर रही है? ट्रेन 2 को क्रॉस कर रही है 36 सेकेंड में। ठीक है, तो लेंथ ऑफ ईच ट्रेन वी हैव टू कैलकुलेट। तो हम क्या करेंगे? लेंथ ऑफ ईच ट्रेन कैलकुलेट करेंगे। तो लेंथ ऑफ ईच ट्रेन कैलकुलेट करने के लिए हमने देखा कि हमारे पास में दोनों इसका स्पीड हमको मेंशन है, दोनों इसका स्पीड कितना है? 46 और 36। तो रिलेटिव स्पीड क्या निकलेगा यहाँ पे? रिलेटिव स्पीड कैसे निकालेंगे हम लोग? यहाँ पे पैरेलल है ये, तो माइनस करना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। पैरेलल है मतलब क्या? सेम डायरेक्शन में मूव हो रही है, और सेम डायरेक्शन में मूव होती है तो हम क्या करते हैं उसका? हम क्या करते हैं उसका? मतलब उसका डिफरेंस लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग 1 मिनट स्लाइड को देखना है, आपको समझना है, उसको समझता है तो ठीक, अदरवाइज आई विल एक्सप्लेन यू, बट गो थ्रू द स्लाइड नंबर, दिस प्रॉब्लम नंबर 8। So it's very simple, same concept. Yeah. So let's discuss this problem.
दी टू क्रॉस ईच अदर, ठीक है, इज इक्वल टू व्हाट, लेंथ ऑफ, यहाँ पे देखो अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या था, सम ऑफ दी लेंथ ऑफ ट्रेन, और यहाँ पे उसने क्या बोला है कि दोनों का लेंथ क्या इक्वल है, तो जो भी रहेगा तो 2 इंटू लेंथ ऑफ ट्रेन रहेगा, दोनों का इक्वल ही है, अपॉन रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमने बताया कि दोनों पैरेलल, मतलब ट्रेन जो है वो पैरेलली मूव हो रही है, तो दोनों स्पीड का क्या डिफरेंस होगा, एक का स्पीड 46 है, दूसरे का 36 है, तो ये हो जाएगा 2L अपॉन 46 माइनस 36, तो ये हो जाएगा आपका 2L अपॉन 46 माइनस 36 कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 10 किलोमीटर पर आवर। जो रिलेटिव स्पीड जो वो किलोमीटर पर आर में निकाली है, तो ये किलोमीटर पर आर है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, पहले तो इसको मीटर पर आर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ये 2L, तो ये हो जाएगा आपका 10 इंटू किलोमीटर पर आर, ठीक है, तो इसको किलोमीटर पर आर को मीटर पर आर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 5/18 से डिवाइड करेंगे, 5/18 से डिवाइड अगर हम लोग इसको करेंगे तो ये 2L अपॉन होता है आपका 25, मतलब ये 50/18 हो जाएगा, तो ये 25/9 हो जाएगा, 25/9 हो जाएगा, ठीक है, ये 2L अपॉन 25/9 हो गया। अब हमको क्या निकालना है, लेंथ ऑफ ट्रेन निकालना है, तो उसके लिए टाइम क्या है, 30 सेकेंड टाइम था क्रॉस करने के लिए, तो क्रॉस करने का टाइम हमको 30 सेकेंड गिवन था, लेंथ ऑफ ट्रेन हमको निकालना है, मतलब हमको 2L निकालना है, ठीक है, 2L हमको निकालना है, और 2L निकालने के लिए हमारे पास में रिलेटिव स्पीड का वैल्यू कितना गिवन है, 25/9, समझ में आया। तो अब इसको निकालेंगे कैसे, देखो ये 9 जो है वो ऊपर में चले जाएगा, तो 9 इंटू क्या हो जाएगा, जो भी आपका 2 इंटू लेंथ, लेंथ ऑफ ट्रेन है, तो मैंने एल बोला है, तो कैसे निकालेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 18, मतलब ये 9 ऊपर चले गया, तो 9 ऊपर जाएगा, तो आपका क्वेश्चन कैसे हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 2L अपॉन इंटू 9/25, ठीक है, तो ये अब आगे वाले स्टेप में क्या करेंगे, आगे वाले स्टेप में हम करेंगे 36/25 इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 2L इंटू 9, तो ये हो जाएगा आपका 9 और ये 4, ये हो जाएगा 100, और 100/2, तो L इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो आपका जो हो जाएगा 100/2 दैट इज इक्वल टू L, और मतलब L इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 50 मीटर। बहुत इजी क्वेश्चन है, देखिए हमको डिफिकल्ट लगते हैं, क्वेश्चन को हम लोग अगर समझते हैं तो वी कैन सॉल्व इट इजीली, ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, प्रॉब्लम नंबर 8 हो गया, जिसमें हमने क्या देखा है, हमने बोला है कि हमारे पास में दो जो ट्रेन थी, ठीक है, वो पैरेलली मूव हो रही थी, पैरेलल लाइंस में मूव हो रही थी, ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रॉब्लम नंबर 8, जो हमने टू ट्रेन के ऊपर में देखा है, जब दो ट्रेन की हम लोग बात कर रहे हैं तब देखा है हमने। क्लियर, किसी को कोई डाउट है तो प्लीज चैट बॉक्स में मेंशन करेंगे। किसी को कोई डाउट है तो प्लीज चैट बॉक्स में मेंशन करेंगे। है, okay, so we will move to next problem.
प्रॉब्लम नंबर 9. Please try to solve this by your own. प्रॉब्लम नंबर 9 की बात कर रहे हैं. A 270 meters long train running at a speed of 120 kilometer per hour crosses another train running in opposite direction at a speed of 80 kilometer per hour in 9 seconds. What is the length of other train? ठीक है, क्या बोल रहे हैं वो देखेंगे क्वेश्चन में. 270 meters लॉन्ग ट्रेन है, उस लेंथ इज 270 meters, रनिंग ट्रेन रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 120 किलोमीटर पर आवर. और वो जो ट्रेन है उसका लेंथ इज मेंशन 270 और उसका स्पीड इज आल्सो मेंशन दैट इज 120 किलोमीटर पर आवर, व्हिच क्रॉसेस अनदर ट्रेन. वो क्या कर रही है, क्रॉस कर रही है अनदर ट्रेन को इन ऑपोजिट डायरेक्शन विद स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर इन 9 सेकंड. कितने टाइम में कर रही है, 9 सेकंड में कर रही है. ठीक है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द अदर ट्रेन. बहुत सिंपल है, एवरीथिंग इज गिवन इन द क्वेश्चन, वी डोंट हैव टू बॉदर. राइट, सो लेट्स सी व्हाट इज द. सबसे पहले तो रिलेटिव स्पीड के बारे में हम लोग बात करेंगे. यहाँ पे क्या बोला है, ऑपोजिट डायरेक्शन बोला है, तो रिलेटिव स्पीड क्या निकलेंगे हमारी 120 प्लस 80, मतलब दोनों स्पीड का क्या हो जाएगा, एडिशन. देखो फॉर्मूला हमारा t इज इक्वल टू होता है, फॉर्मूला इज t इज इक्वल टू लेंथ ऑफ सम ऑफ लेंथ होता है. तो लेंथ कितना है, 270 मीटर है और दूसरे का लेंथ हमको निकालना है. तो मैं डायरेक्टली आपको यहाँ पे वैल्यू लिख रही हूँ कि पहला जो लेंथ है मेरा वो 270 है, दूसरा जो मैं एक्स अज्यूम कर रही हूँ, और इसमें नीचे में मुझे रिलेटिव स्पीड निकालना है. ठीक है, तो रिलेटिव स्पीड का व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर रिलेटिव स्पीड. रिलेटिव स्पीड क्या है, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो वो ऐड हो जाएगी, दैट इज 120 प्लस 80 इज इक्वल टू 200 किलोमीटर पर आवर. लेकिन ये किलोमीटर पर आवर है, तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, 200 इंटू 5/18. तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1000/18. क्लियर. तो ये इसको एक मिनट, हाँ बराबर है, 1000/18 ये हो जाएगा आपका. तो ये हो जाएगा 500/9 कर दो इसको, सीधा सीधा 500/9 कर दो इसको सिंपली. ठीक है, तो ये 500/9 जब इसको करेंगे, मैं यही लिख रही हूँ 500/9, ये रिलेटिव स्पीड निकल गया. अब टाइम तो हमको पता है 9 सेकेंड में बोला है,
तो देखो ये इक्वेशन को अभी हम लोग प्लॉट करते हैं, ये हो जाएगा 9 सेकेंड अपॉन 270, ये हो जाएगा 9 सेकेंड 270 प्लस एक्स अपॉन ये हो जाएगा आपका 500/9। ओके, सो ये 9 ऊपर चले जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका 500 × 9। अब देखो, इसको देखो, सिंपल करने का और एक आसान तरीका, ये 9 ऊपर चले गया, दिस विल बिकम योर 270 प्लस एक्स अपॉन 500 इक्वल टू में सेम वैल्यूज विल गेट कैंसिल। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अब आपका 500 विल गो हियर, देखो मैं ये बॉक्स में लिख रही हूँ, नाउ दिस 500 विल गेट इक्वल टू व्हाट 270 प्लस एक्स। तो सिंपली अब आपको 500 और 270 को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। सो 500 माइनस 270 आप जब करेंगे, 500 माइनस 270, तो ये हो जाएगा आपका 230, तो आपका एक्स का वैल्यू इज इक्वल टू 230 मीटर्स। ये हो जाएगा आपका प्रॉब्लम नंबर 9, आपका ऑप्शन नंबर ए। इन सच अ वे यू विल गेट द क्वेश्चन। ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 10। ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 10 में two trains are moving in the opposite direction at 30 किलोमीटर पर आवर एंड 90 किलोमीटर पर आवर। मतलब दो ट्रेन की वी आर टॉकिंग अबाउट टू ट्रेन, और दोनों का आपको क्या गिवन है, स्पीड गिवन है, जो क्या हो रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, तो जब ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, प्रॉब्लम नंबर 10 की हम लोग बात कर रहे हैं, तो व्हेन टू ट्रेन्स आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन एट द रेट 60 किलोमीटर पर आवर एंड 90 किलोमीटर पर आवर, देयर लेंथ्स आर, ठीक है, दोनों की लेंथ्स भी हमको गिवन है, दैट इज 1.1 किलोमीटर एंड 9.9 किलोमीटर। अब देखो ये सारी जो चीजें है ना, यहाँ पे किलोमीटर्स में दिख रही है, लेंथ अब तक हमने मीटर्स में ही देखी है, लेकिन यहाँ पे हमको किलो इसमें दिख रही है, किलोमीटर में दिख रही है। The time taken by slower train to cross the faster train in seconds, मतलब यहाँ पे अभी हमको टाइम टेकन टू क्रॉस ईच ट्रेन निकालना है, ईच अदर, ठीक है, वो हमको निकालना है। अब टाइम टेकन इन सेकेंड्स बोला है, मेक ए नोट ऑफ इट, क्या बोला है, सेकेंड्स बोला है, तो इट इज इम्पोर्टेंट टू कन्वर्ट देम। ठीक है, हमको क्या करना है, हमको कन्वर्ट ही करना है। तो अब देखो इसको करेंगे कैसे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये भी। देखो सबसे पहले फॉर्मूला तो हमको पता ही है, मैं थोड़ा कन्वर्जन आपको पहले बता देती हूँ। लेंथ को हमको मीटर्स में कन्वर्ट करना है, तो ये 1.10 किलोमीटर है, मीटर में करेंगे तो क्या हो जाएगा 1100। ठीक है, तो ये आपका जो पहला ट्रेन है उसका जो लेंथ है L1, मैं लिख रही हूँ किस, क्या लिख रही हूँ, L1 इज इक्वल टू 1100, और आपका जो L2 है जो 0.9 किलोमीटर है, तो ये कितना हो जाएगा, 0.9 है, तो ये हो जाएगा आपका 900। ये L2 जो है ये हो जाएगा आपका 900। क्लियर, तो ये आपका लेंथ निकल गया। अब लेंथ निकलने के बाद में, ठीक है, इसको ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि फॉर्मूला के हिसाब से क्या है, फॉर्मूला क्या बोलता है, मेरा फॉर्मूला ये बोलता है कि T इज इक्वल टू होता है सम ऑफ लेंथ अपॉन इट्स रिलेटिव स्पीड। ठीक है, तो सम ऑफ लेंथ क्या हो गया, क्या हो गया लेंथ 1100 प्लस 900 अपॉन रिलेटिव स्पीड। तो चलो रिलेटिव स्पीड को निकाल लेते हैं पहले। तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, रिलेटिव स्पीड दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में, ऑपोजिट ऑपोजिट में है, तो विल गेट ऐड, ये 90 प्लस 60 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 150, मतलब ये 60 प्लस 90 इज 150 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये हो जाएगा, देखो 90 प्लस 60 इज इक्वल टू 150 किलोमीटर पर आवर है, इसको क्या करना पड़ेगा, मीटर पर आवर करना पड़ेगा, तो ये 150 इंटू 5/18 करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 150 इंटू 5/18 करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 15 5 से 125 डिवाइडेड बाय 18। 750 डिवाइडेड बाय 18 हो जाएगा ये आपका
इसको फिर हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये 3 आ जाएगा नीचे में 6 से। ठीक है, तो ये 125/3 क्या आ गया, रिलेटिव स्पीड आ गया। तो चलो मैं यहाँ पे रिलेटिव स्पीड को लिख देती हूँ। रिलेटिव स्पीड इज 125 डिवाइडेड बाय 3। क्लियर। तो ये हमने निकाल लिया। अब हमको टाइम निकालना है टी। ये टी हमारा क्वेश्चन है। अब इसको और सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे देखो। ये हो जाएगा +90, सॉरी 900 है ये, सॉरी 900। ये हो जाएगा आपका 2000। नाउ दिस 2000 डिवाइडेड बाय 125/3, इसको एडजस्ट कर लेंगे। 2000 इंटू 3/125, 40 उधर है, राइट। तो देखो इसको इधर मैं ग्रीन वाले बॉक्स में सॉल्व कर रही हूँ। नाउ दिस विल बिकम योर टाइम टेकन t इज इक्वल टू, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2000 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 125। तो ये हो जाएगा 2000 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 125। तो इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है, 5। 48 सेकेंड, मतलब ये 16 इंटू 3 हो जाएगा। यू विल गेट अबाउट 48 सेकेंड्स। तो ये क्या निकल गया आपका 48 सेकेंड। इट इज अ टाइम टेकन बाय स्लोअर ट्रेन टू क्रॉस द फास्टर ट्रेन इन सेकेंड्स। इन हाउ मेनी सेकेंड्स, दैट इज 48। तो 48 सेकेंड्स क्वेश्चन ऑप्शन हमको मेंशन है, दैट इज 48 सेकेंड्स हमको क्या लगने वाले हैं, वो जंक्शन को क्रॉस करने के लिए क्या लगने वाले हैं हमको, टाइम हमको इतना लगने वाला है। तो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टॉपिक ट्रेन्स, ठीक है। तो ऐसे सिमिलर टाइप के क्वेश्चन यू विल बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन एंड इट इज मच इजियर, ठीक है, ये बहुत इजी है। एक बार अगर आप कॉन्सेप्ट समझ लिए, एक बार फॉर्मूले ध्यान में रख लिए, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने जो देखे हैं ये क्या है, प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन्स है। नाउ ये जो है दिस इज योर बेसिक, बेसिक ये हो गया आपका ट्रेन के ऊपर में जो आपको एग्जाम में पूछेंगे, ठीक है। तो अब आपको करना क्या है, इसको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस करने के बाद में आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे एंड यू विल गेट आंसर्स। क्लियर। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो
So we will be starting with the next topic, that is partnership. बहुत इजी टॉपिक है, मैं आपको दो चार सम्स कराऊंगी, नॉट मोर देन दैट. आई विल गो थ्रू ओनली कॉन्सेप्ट्स. So the very first question on partnership. A partnership मतलब what do you mean by partnership? If someone started a business, तो आप शेयरिंग में स्टार्ट करते हो, पार्टनरशिप में स्टार्ट करते हो. दोनों के कुछ पार्टनरशिप के परसेंटेज होता है, कोई इतना इन्वेस्ट करता है, कोई उससे ज्यादा इन्वेस्ट करता है. तो उसके हिसाब से उनके प्रॉफिट्स भी होते हैं, उसके हिसाब से उसके लॉस भी होते हैं, राइट. तो सॉरी. चलो, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट हम पार्टनरशिप के बारे में बात करेंगे. तो पार्टनरशिप क्या होती है ये आप सबको पता है, ठीक है. तो बड़े बड़े बिजनेसमैन भी एक दूसरे के साथ में पार्टनर्स पार्टनर्स होते हैं, ठीक है, हमने ये सब भी सुना है. तो मैं आपको बहुत बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगी. क्वेश्चन मतलब मैं आपको सिर्फ डिस्कस करूंगी और उसका क्या कॉन्सेप्ट है वही आपको बताऊंगी, ठीक है. तो देखो, पार्टनरशिप की जब हम लोग बात करेंगे, when we talk about the partnership, ठीक है, the basic question or the basic concept under this partnership is your for example कोई ABC are the persons, three persons are there who started their business by investing. For example, A ने invest किया, A has invested 1,20,000, ठीक है. चलो मैं ऐसा लिखती हूँ. B ने इन्वेस्ट किया फॉर एग्जाम्पल इतना 35, एंड C हैज इन्वेस्टेड 1,50,000 बोल देते हैं, ठीक है. ठीक है, ये तीनों ने इतना इन्वेस्ट किया है और हमको क्या निकालना है कि हर किसी का मतलब वी हैव टू फाइंड द शेयर ऑफ ईच, ठीक है. शेयर ऑफ ईच निकालना है. अगर प्रॉफिट हमारा एनुअल प्रॉफिट इज इक्वल टू रुपीज 16,200, ठीक है. देखो मैं गिवन डेटा को फिर से लिख रही हूँ. व्हाट ए का जो इन्वेस्टमेंट है ये है 1,20,000. बी का जो इन्वेस्टमेंट है इट इज 1,35,000. सी का जो इन्वेस्टमेंट है इट इज 1,50,000. Now I'm talking about the profit. The annual profit P that they have got is rupees 16,200. Clear? So this 16,200 is the total profit they have got throughout the year. Annual profits को हम लोग बोल रहे हैं. तो अब देखो, अगर हम इनकी बात करेंगे तो इसको रेशो के हिसाब से सॉल्व करना है बहुत इजी. A is to B is to C. तो अगर रेशो के हिसाब से सॉल्व करेंगे तो ये तीनों जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है. तीनों जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे. तो A is to B is to C अगर हमको निकालना है फॉर एग्जाम्पल, तो मैं A को यहाँ लिख रही हूँ, B को यहाँ लिख रही हूँ, C को यहाँ लिख रही हूँ, क्योंकि मुझे तो पहले इनका इन्वेस्टमेंट पता होना चाहिए, राइट. तो A का अभी कितना है 120 है इस टू 135 इस टू. इसको और हम कम कर सकते हैं. कैसे करेंगे? 15 से होता है. 15 8 जा 120, 15 9 जा 135 एंड 15 10 इज 150. तो अब आपका रेशियो जो है वो शॉर्टकट में क्या आ गया? इसको शॉर्ट करके 8:9:10. अब ये रेशो का आप क्या करेंगे? एडिशन करेंगे. मतलब इतना इनका इन्वेस्टमेंट है 8 9 एंड 10. तो इसको व्हेन यू विल एड दिस टर्म्स दैट इज 8 प्लस ये कितना हो जाएगा 10 प्लस 9 इज 19 एंड 19 प्लस 8 इज 27. तो इनका टोटल रेशो कितना है? टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है? 27 है. और ये 27 इन्वेस्ट करने के बाद में इन सबका मिला के प्रॉफिट कितना हो रहा है? 16,200. व्हाट इज द प्रॉफिट? 16,200. तो जब सबने मिलाया कितना 27 आया सबका और इसका टोटल प्रॉफिट कितना आया, तो फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे ए का निकालना है, मतलब 8 का रेशो निकालना है, तो ए का अगर मुझे प्रॉफिट निकालना है तो मेरा वैल्यू कितना होगा? गेटिंग और नॉट? ओके. सो मैंने क्या बोला आपको ये समझ में आया
you have this total ratio of 27. ये 27 का ये तीनों का मिला के है, तीनों का प्रॉफिट मतलब 8, 9 और 10 का प्रॉफिट, ये इतना तीनों का मिला के ये रेशियो 27 बन रहा है, और इसके ऊपर में प्रॉफिट यू विल गेट 16,200. सो व्हाट इज द प्रॉफिट ऑफ ए अलोन? ए का कितना रेशियो है? 8. तो कैसे निकालेंगे? 8 इंटू 16,200 करेंगे, डिवाइडेड बाई क्या करेंगे? 27 करेंगे. क्लियर? तो आपको क्या निकल जाएगा? ए का प्रॉफिट, मतलब मैं यहाँ पे ए लिख देती हूँ फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. ये कैसे निकलेगा? तो 27 से इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड होता है 27 इंटू 22. तो ये 6 से करेंगे. ठीक है, तो ये होता है आपका 600. और ये 600 इंटू 8 करेंगे, 8 इंटू 600, तो ये हो जाएगा 48. मतलब इसका कितना प्रॉफिट मिला है आपको? 48 मिला है. ठीक है, 4800 मिला है. अब अगर आपको बी का निकालना है, फॉर एग्जाम्पल आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट बी. अगर मैं बी का निकालूंगी, इफ आई हैव टू फाइंड द प्रॉफिट ऑफ बी, तो हाउ कैन यू कैलकुलेट द प्रॉफिट ऑफ बी? प्रॉफिट ऑफ बी is equal to, profit of B is equal to, now again we have to put in the same formula. क्या था हमारा? टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू 1600, और ये टोटल रेशियो था 27, और बी का कितना रेशियो था? 9 था, एंड वी हैव टू कैलकुलेट द प्रॉफिट ऑफ बी. ठीक है, ए का कितना आया था? 4800 आया था. ठीक है, 4 का आया था 4800. बी का कैसे निकालेंगे? अगेन देखो ये कितना हो रहा था, कट करने के बाद में ये 600 था, ये एज इट इज रहेगा. ठीक है, नो 9 इंटू 6 करेंगे तो 5400. तो ये किसका निकल गया? दिस इज द प्रॉफिट ऑफ बी. ठीक है, अब हमको क्या करना है? सी का निकालना है. तो सी के लिए क्या रेशियो रहेगा? जैसे सी का कितना था? 10 था, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ सी. तो ये हो जाएगा आपका, अगेन दिस वुड बी योर 600, एंड दिस 600 इंटू 10 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका? सी इज इक्वल टू 6000. ये सी का निकल गया. तो ए का जो वैल्यू था वो 1400 था, फिर आपका निकला ये 5400, एंड दिस इज योर 6000. तो अगर आप लोग इसको ऐड करेंगे तो ये 6 और 5 हो जाएगा आपका 11, 11 प्लस ये 4 हो जाएगा आपका 11 एंड 4 इज 15, एंड 8, 5, 8 एंड 4 इज उसमें हो जाएगा आपका 1200. तो 15 प्लस 1 इज, ठीक है, वो आपका 600, और ये 16, और 16,200 is your total annual profit that is mentioned in the question already. This is given in the question. तो इस तरीके से अगर आपको क्वेश्चन given है, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन वुड बी लाइक दिस: A, B and C started a business by investing rupees. For example, A has invested 1,20,000, B invested 1,35,000, and C invested 1,50,000 respectively. Find the share of each out of an annual profit of rupees 16,200. Question would be like this. ठीक है, तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया, जिसमें आपको क्या निकालना था? इंडिविजुअल शेयर निकालना था, हर किसी का शेयर निकालना था. ठीक है, तो अगर आपको दूसरा क्वेश्चन पूछा गया, फॉर एग्जाम्पल we will talk about the second question, कि आप someone has started a business by investing 45,000 rupees. ठीक है, देखो मैं क्वेश्चन आपके साथ में शेयर करती हूँ. जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड. For example, this is your question, that is the
Question is, Alfred started a business investing of rupees 45,000. उसने एक business start किया by investing 45,000. This is the question. ठीक है. After 3 months, Peter joins him with a capital of 60,000. 3 महीने के बाद में उसको किसी एक फ्रेंड ने उसके ज्वाइन किया और उसने कितना इन्वेस्ट किया? 60,000. मतलब अल्फ्रेड ने 45,000, पीटर ने 60,000 after 3 months. But make a note of it, after 3 months. And after again 6 months, sorry, after 6 months, Ronald joined them with a capital of 90,000. At the end of year, they made a profit of 16,500. What is the share of each? अब क्वेश्चन में ट्विस्ट क्या है कि यहाँ पे सबने एक साथ इन्वेस्ट नहीं किया है. पहले अल्फर्ड ने इन्वेस्टेड 45,000 फॉर कंप्लीट 12 मंथ्स एनुअल प्रॉफिट. एंड ऑफ द ईयर पूछा, एट द एंड ऑफ द ईयर दे मेड अ प्रॉफिट. इसका मतलब पूरे साल की बात हो रही है. तो अल्फर्ड ने जो जो इन्वेस्ट किया है वो पूरे 12 महीने के लिए किया है, करेक्ट. उसके बाद में 3 महीने के बाद में पीटर ने इन्वेस्ट किया है, वो कितने 3 महीने के बाद मतलब 12 माइनस 3 करेंगे तो कितना मंथ, 9 मंथ्स के लिए उसने इन्वेस्ट किया है. और उसके बाद में आफ्टर 6 मंथ्स रोनाल्ड ने किया है. 6 मंथ मतलब 6 महीने तो गए, तो फिर 6 महीने के लिए कितना इन्वेस्ट किया उसने, 90,000 इन्वेस्ट किया. तो इन सबका मिला के एट द एंड वी आर गेटिंग 16,500 प्रॉफिट. व्हाट इज द शेयर ऑफ ईच? क्लियर? व्हाट इज द शेयर ऑफ ईच? तो देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे. मैंने क्या बोला कि एल्फोर्ड जो है, ठीक है, AL लिख रही हूँ मैं, उसको शॉर्टकट में नाम लिख रही हूँ. उसने किया था 45,000. कितने महीने के लिए? 12 महीने के लिए. तो मैंने इंटू 12 लिख दिया. दिस इज फॉर अंडरस्टैंडिंग. पीटर ने कितना किया? 60 किया था. कितने महीने के लिए? 3 महीने के बाद में किया था, मतलब 9 महीने के लिए. और रोनाल्ड ने जो किया था वो था 90,000. ठीक है, 90,000 कितने इसके लिए? 6 के लिए. तो अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे. देखो रेशो में तो सारे जीरो हट जाएंगे. ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करो. 45, 60 और 90 कट जाता है ये. 15 से देखो, 15 3, 15 4, 15 6. रेशो क्लियर? ठीक है, तो ये क्या हो गया अभी? 3 इंटू 12, 4 इंटू 9 एंड 6 इंटू 6. तो ये कितना हो जाएगा? 3 इंटू 12 इज 36 इज टू 9 इंटू 4 इज अगेन 36 एंड 6 इंटू 6 इज अगेन. तो इनका कितना शेयर? 1:1:1. ये टोटल रेशो हो गया. और ये तीनों जो टोटल प्रॉफिट कर रहे हैं, टोटल प्रॉफिट कितना है? क्वेश्चन में टोटल प्रॉफिट क्या बोला था? टोटल प्रॉफिट at the end of the year they made a profit of 16,500. They made a profit of 16,500. तो देखो 16,500 ये हमारा टोटल प्रॉफिट है. किसके लिए? 3 शेयर्स के लिए. अगर मुझे पहले का निकालना है, मतलब इसका निकालना है, अल्फ्रेड का निकालना है, तो 1 तो 1 का कितना? तो कैसे हो जाएगा? 3 से आप क्या करेंगे? डिवाइड. कोई भी आएगा तो आपको 3 से ही क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा. तो 3 से डिवाइड करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा 3 5, अगेन 3 5 एंड डबल 0. तो ए का प्रॉफिट इज इक्वल टू बी का प्रॉफिट इज इक्वल टू सी का प्रॉफिट. अब ये तीनों का प्रॉफिट इक्वल आया, लेकिन आपने ये चीज नोटिस करना है कि जब हम लोग ये तीन इन्वेस्टर्स की व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट देम, दे हैव इन्वेस्टेड फॉर अ डिफरेंट ड्यूरेशन, डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है, अल्फ्रेड हैज इन्वेस्टेड लेस अमाउंट फॉर, but for the whole year. Peter invested 60,000 for 9 months, and Ronald invested double the amount of Alfred, but for 6 months. So, if we talk about this, we will get ratios of all equal ratios. We will get equal ratios. Hence, the profit of A is equal to B is equal to C is equal to 5,500. That's all. Clear? This is the second example. Now, the last example we are talking about a partnership is the third one that we will start. ABC
start a business, each investing rupees 20,000. ABC तीनों ने इन्वेस्ट किया है, each one has invested 20,000 at the start. After 5 months, A withdraw 5,000. क्या किया, 20,000 में से 5,000 को विड्रॉ किया, तो अब उसके पास कितने बचे, 20 में से अभी 15 बचे. फिर उसके बाद में B विड्रॉ 4,000, 4 कर दिया तो 20 में से 4 गए, 16 बचे. C इन्वेस्ट 6,000 मोर, लेकिन C ने क्या किया, C ने ज्यादा इन्वेस्ट किया, 6,000, मतलब 20,000 प्लस 26. समझ में आया. एट द एंड ऑफ ईयर टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, 69,900 was recorded. Find the share of each. बहुत सिंपल है, जैसे हमने ये किया वैसे ही है. तो देखो इसको सॉल्व कैसे करना है. ए ने इन्वेस्ट किया, ठीक है, ए ने इन्वेस्ट किया, ए बी सी सबने इन्वेस्ट किया 20,000. तो हम सबसे पहले तो ए बी और सी, तो मैं इसको 20K लिखती हूँ शॉर्टकट में, ठीक है. फिर क्या बोला है कि 20 में से उसने 5,000 निकाल लिया, कितने महीने के बाद में. अच्छा, ये जो है 20K, ये कितने, एबीसी इन्वेस्टेड रुपीज 20,000 आफ्टर 5 मंथ्स, ठीक है. आफ्टर क्या बोला है, 5 मंथ्स, ए विड्रॉ 5,000. तो 5 महीने के लिए देखो, चीज को समझना है, 7 महीने और 5 महीने की बात चल रही है. मतलब पहले टोटल मंथ्स जो है 12 मंथ्स है, 12 मंथ्स में से 5 महीने के बाद मतलब बचे कितने, 7 मंथ्स. तो 7 मंथ्स के लिए उसने कितना विड्रॉ कर लिया, 5,000 कर लिया. आफ्टर 5 मंथ्स मतलब 5 महीने तक कितने पैसे थे, 20,000. देखो मैं आपको एक के समझाती हूँ, पहले ए का समझाती हूँ. ए हैज इन्वेस्टेड हाउ मच, 20,000. कितने इसके लिए, 12 महीने के लिए पहले उसने किया. लेकिन उसने क्या किया, सडनली 12 में से 5 महीने बाद, 12 में से 5 गए तो कितना, 7, ठीक है. तो 12 में से 5 महीने के बाद कुछ अमाउंट विड्रॉ कर लिया, तो ये 12 में से 5 महीने के बाद मतलब कर लिया उसने, तो ये कितना, 20,000 जो है वो 5 महीने के लिए था, क्योंकि 5 महीने बाद तो उसने विड्रॉ कर लिया. कितना विड्रॉ कर लिया, उसने 5,000 विड्रॉ कर लिया, तो बचा कितना, 1,500. तो नेक्स्ट जो अमाउंट है 1,500, ये कितने महीने के लिए, अब कितना हो गया बचे हुए 7 महीने के लिए, 15,000 हो गया. समझ में आया. वैसे ही बी का रहेगा. बी ने भी क्या किया, इनिशियली 20,000 इन्वेस्ट कर दिया 5 महीने के लिए, फिर उसने विड्रॉ कर दिया 4,000, तो बचा कितना, 6,000. वो कितने इसके लिए बचा आपका, 7 के लिए. और सी का कैसा है, सी ने पहले कर दिया 20,000 कितने महीने के लिए, 5 महीने के लिए, और फिर उसने क्या किया, उसमें 6,000 ऐड किया, तो ये हो गया 26,000. कितने महीने के लिए, 7 महीने के लिए. समझ में आया. चीजों को समझने की कोशिश करना है, ठीक है. तो अब इसको आपको सॉल्व करना है. फिर जीरोस तो पहले ही हट जाते हैं, ये जीरोस तो कभी लगाना ही नहीं है, जीरोस हट जाती है. 20,000 था तो 20 रह गया, यहाँ पे 20, यहाँ पे 20. तो बचा क्या आपका, 20 + 15, 20 + 16, 20 + 26 इंटू यहाँ पे 7 × 5, 7 × 5, 7 × 5. क्लियर. तो इसको सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका, इधर में सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 15 × 2 दैट इज 300, और नीचे में 35, ठीक है. तो इसको सॉल्व करेंगे, 300 इंटू जो भी आपके रेशो उसके वैल्यू रहेंगे उसको ऐड करना है आपको. ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा आपका 105. अलग अलग पेन से लिखूं, थोड़ा समझने में तकलीफ होगी. इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5 × 2 = 10, तो ये 100 रेशो निकलेगा. और ये निकलेगा 15 × 7, 105. तो ए का टोटल कितना हो गया, 205. ए का टोटल कितना हो गया, 205 हो गया. ठीक है. वैसे ही यहाँ करेंगे तो ये अगेन 100 निकलेगा, और ये क्या हो जाएगा, 16 × 7,
0 1 1 2, तो ये हो जाएगा आपका 2 1 2। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो हमेशा 100 ही रहेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 26 इंटू 7 करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 282। तो ये तीन रेशो हमारे निकले हैं, दैट इज द कंप्लीट वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी। तो हमारा अब रेशो क्या निकला है, देखो ये जो है हमारा ये 205:212:282, ये हमारा रेशो निकला है। तो अब इन तीनों रेशो को अगर हम लोग ऐड करते हैं, तीनों को अगर हम लोग ऐड करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 2 4 5 + 4 = 9। ठीक है, फिर ये हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 6। तो ये टोटल रेशो का वैल्यू हो गया 699। और प्रॉफिट कितना है आपका 6990। तो ये ऑब्वियस सी बात है, कितना हो जाएगा आपका। अब आपको ए का निकालना है, फॉर एग्जाम्पल आपको ए का निकालना है, तो ए का कैसे निकालेंगे, ए का रेशो क्या है 205, तो ये हो जाएगा 205 और ये ए। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द शेयर ऑफ ईच। तो चलो ए का फाइंड आउट करते हैं। तो ए का हमारा हो जाएगा, दैट इज ए इज इक्वल टू, ये तो देखो ये 100 हो गया, एंड 100 × 205 इज इक्वल टू क्या है, ए है। नाउ दिस इज 20,500। ए का कितना हो जाएगा 20,500 इज इक्वल टू ए। वैसे ही हमको बी का करना है। नाउ वी विल फाइंड द प्रॉफिट फॉर बी। तो व्हाट इज द वैल्यू फॉर बी, बी का रेशो वी विल फाइंड, बी का रेशो इज इक्वल टू हाउ मच, बी का रेशो इज इक्वल टू, बी का रेशो ये हो जाएगा अगेन 69900 699, तो ये हमेशा 100 ही आएगा, प्लीज मेक श्योर। बी का है 1212 एंड दिस इज दी बी। तो बी का वैल्यू इज इक्वल टू हाउ मच, ये क्योंकि 100 ही रहने वाला है, एंड दिस वुड बी योर 21200 रुपीज। वैसे ही सी का रहेगा, सी का क्या रहेगा 69900 इज इक्वल टू 699 एंड सी इज इक्वल टू 282। सो ये हो जाएगा आपका C इज इक्वल टू 28200। सो प्रॉफिट ऑफ A, B and C is A is equal to 20,500, B is equal to 21,200, or C is equal to 28,200. This is the profit of each investor that who has invested in business. Clear? किसी को कोई डाउट है? We are done with partnership also. These are the very basic questions, and इससे difficult भी नहीं पूछेंगे. In the next lecture we will continue this topic. So till now किसी को कोई doubt है, you may ask. Till now, does anyone have problem? If you have problem, please mention. If you don't have any problem, then also mention. No. Okay. So this is all about the aptitude topic that we have gone through, problems on trays, and a very few problems of partnership, very basic problems of partnership. We will continue this topic in the next lecture. Okay. Thank you so much.